Assalamu alaikum Nazeen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shigri. Nazeen, Heart of Asia Conference which is taking place in Amritsar, India اور 4 دسمبر کو اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا اس کانفرنس کا، اور جس میں پاکستان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے بھی اس کو کلیئرلی اناؤنس کر دیا تھا کہ پاکستان has decided to participate in this، اور جو اب دیکھا جا رہا تھا کہ افغانستان اور انڈیا کی جانب سے کچھ اس طرح کی خبریں تھیں کہ بڑا پلان کیا جا رہا ہے پاکستان کو کارنر کرنے کے حوالے سے، بٹ پاکستان کی شرکت اور پارٹیسپیشن کو بہت پاکستانیز بھی اس کو بڑا پازیٹیو کنسیڈر کریں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنلی پازیٹیو میسج دے گا کہ ڈائیلاگ کے پروسیس کے لیے اور ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا فوکس ول بھی افغانستان، اس میں ریجنل اس میں اسٹیبلٹی اور اکنامک انٹیگریشن کی بات جہاں تک کی جاتی ہے، تو پاکستان اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہا ہے، اور جہاں پر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی پاکستان ہر بار پہل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے اسپوکس پرسن وکاس سواروپ نے کہا کہ بھارت مذاکرات کے حق میں ہے لیکن موجودہ صورتحال میں نہیں، تو وہ صورتحال وہ ایٹماسفیئر ڈائیلاگ کے لیے when it comes to پاک انڈیا ریلیشنز اور ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کی جہاں پر بات کی جاتی ہے، تو وہ دو طرفہ مذاکرات کے لیے ماحول خوشگوار کب ہوگا اور اس میں اتنی کمپلیکیشنز کس طرح سے آئیں، اور جہاں پر بات آتی ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی کی، معاملات کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے گا۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ لانچ ہوا تھا استنبول میں، بیکاز اٹس آلسو نون ایز استنبول پروسیس، 2011 کے نومبر میں اس کو لانچ کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انشورنگ پیس اینڈ سیکیورٹی ان افغانستان، اور جو کوآپریشن ہے افغانستان اس کے نیبرنگ کنٹریز میں جہاں تک بات آتی ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی، اور جو اس کے نکات ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ٹریڈ اینڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور جو اس کے 6 کی ایریاز ہیں اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر نارکوٹکس، ٹریڈ انویسٹمنٹ، ریجنل انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، فارمر ایمبیسڈر، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، تھینک یو، آپ نے بھی ہمیں جوائن کرا۔ اور ہمیں جوائن کرے ڈاکٹر پرویز ادبائی صاحب جو کہ سینئر ڈیفینس اینالسٹ اینڈ سینئر کالمسٹ۔ السلام علیکم پرویز صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو کا آغاز ایاز وزیر صاحب، چونکہ میں نے جس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ ہم بات کریں گے پاکستان کی پارٹیسپیشن اس، اور پاکستان کا جو ڈیلیگیشن جو نمائندگی کرے گا اس کانفرنس میں، وہ اور امپورٹنس آف ہارٹ آف ایشیا کانفرنس، اس کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت ہی اہم فورم ہے ہمارے لیے، کیونکہ افغانستان فوکسڈ ہے یہ، اور ہم نے لاسٹ ایئر ہوسٹ کیا تھا یہاں اسلام آباد میں۔ ابھی تک ہم کو چیئر ہیں، اس کے 2 چیئرمین ہوتے ہیں۔ افغانستان پرماننٹ چیئر ہے، اور جو کنٹری ہوسٹ کرتی ہے وہ کو چیئر ہو جاتی ہے۔ تو اب ہماری جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے یا ایک دلیل کہ وہ کو چیئرمین شپ ہم ہینڈ اوور کریں گے، اور چیئر تو افغانستان ہے، وہ ان کا پریزیڈنٹ خود آئے گا۔ اور دوسری بات کہ ہم پڑوسی ملک ہے افغانستان کے، امیجیٹ پڑوسی ہے۔ افغانستان کے اندر امن آنا، افغانستان کے اندر ترقی کرنا، افغانستان پورے خطے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر خاص کر، تو ہماری تو ہر سطح پہ کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے، ورنہ اگر بائی لیٹرل انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا تھا تو سارک میں وہ نہیں آئے تھے یہاں پہ، بالکل، تو ہم بھی بہانہ ڈھونڈ سکتے تھے کہ ہم بھی نہیں آتے، لیکن ہندوستان کے ساتھ بائی لیٹرل پہ بھی ہم میدان سے نہیں بھاگتے، ہم ان کے ساتھ بائی لیٹرل بات چیت ہو، ملٹی لیٹرل ہو یا دوستوں کے ذریعے ہو، ہر جگہ پہ ہم تیار ہیں۔ تو ہارٹ آف ایشیا پہ جانے کا میرا خیال ہے بہت ہی اچھا فیصلہ حکومت نے کیا کہ سرتاج عزیز صاحب جائیں گے، وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے، تاکہ افغانی یہ نہ فیل کر لے کہ چونکہ یہ ہمارے زیادہ فوکسڈ ہمارے اوپر ہے، ہمارے ملک کے اوپر امن لانے میں، ترقی دلانے میں، تو پاکستان نے اب اس اہم جگہ پہ اپنی غیر حاضری لگوا دی۔
तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो हर सतह पे कंटिन्यू होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अयाज वजीर साहब ने भी कहा कि सार्क में और जिस तरह जो सार्क कॉन्फ्रेंस का हाल किया गया, इंडिया ने जिस तरह से बॉयकॉट किया और हर तरह से कोशिशें उनके एंड से की जा रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, इस कॉन्फ्रेंस में सर पाकिस्तान को किस किस इल्जामात और किन किन इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए? ये जो कॉन्फ्रेंस है, मतलब है कि इसमें पार्टिसिपेशन अभी किसकी होनी चाहिए थी, किसकी नहीं होनी चाहिए, सतह क्या होनी चाहिए थी, वो उसके ऊपर बातचीत होती, लेकिन इस बीच में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी था। या तो हम इस पूरे कॉन्फ्रेंस को, जैसे इंडिया ने पूरे सार्क को ख़त्म कर दिया, ये नहीं किया कि बाकी सारे आ गए और हिंदुस्तान नहीं था बीच में और हमने करा दी। तो चूंकि हम उसको रोक नहीं सकते थे, होना था, तो इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो लाजिम थी हमारी, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान के, मतलब है कि जो हिंदुस्तान, जैसे गोवा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को एक टेरर एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे इसको सामने लाया जाए, और दूसरी जो वो है कि पाकिस्तान वो एपिसेंटर है ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी। इन दो चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस होगा, अफ़गानिस्तान का भी होगा और हिंदुस्तान का भी होगा। बाकी मुल्कों से इतना शदीद तनकीद पाकिस्तान पे नहीं होगी, लेकिन इन दो मुल्कों से अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, जो एम्बेसडर है वहाँ पर इंडिया में, उसकी अगर आप बातचीत सुन लें, प्रेसिडेंट अशरफ गनी की अगर आप बातचीत सुन लें, तो उससे तो यही हो रहा है कि फोकस पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। अफ़गानिस्तान की जंग भी अगर है तो उसका सलूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। इसके साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इसके साथ बाकी भी बड़ी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की यही कोशिश होगी और पाकिस्तान को इसको डिफेंड करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। राइट सर, बट सिर्फ ऑफिशियल्स जो हैं अफगानिस्तान, और परवेज साहब मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी, जो ऑफिशियल्स हैं इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की जानिब से इस बात को बड़े ओपनली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए जो है वो फुल जैसे प्लानिंग कर ली गई है और पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाएगा। तो अगेन वही वाली बात, और आज वजीर साहब ने भी जिस तरह से कहा कि लास्ट ईयर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी, बट पाकिस्तान और इंडिया के भी जहां पर ताल्लुकात आ जाते हैं, तो दोनों के ताल्लुकात इस नहज पे किस तरह से चले गए? वो पठानकोट इंसिडेंट दैट पॉइंट कि जहां से एग्रीवेट हुई हैं चीजें? मेरा ख्याल है इससे कोई इनकार नहीं कि दोनों तरफ बड़ी ख़राब फीलिंग्स है, कशीदगियां हैं, और जब कशीदगियां होती हैं तो तब ही मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का। अब ज़रूर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सरकारी अफसरान होंगे, उनके ऑफिशियल्स होंगे जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को कॉर्नर करेंगे, लेकिन ये बातें तो हमारी तरफ से भी होती रही हैं। लिहाजा इस मौके पे जब दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे, तो ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला था कि इंडिया जाया जाए इस कॉन्फ्रेंस के वास्ते। और मेरा ख्याल है इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ इंडिया के साथ बिगड़े हुए नहीं हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हैं। बिल्कुल। और अब ये एक मौका मिल रहा है कि हम दोनों अपने पड़ोसी ममालिक के साथ कुछ हालात बेहतर करने की तरफ चलें। सर, अगर पार्टिसिपेशन को अब बहुत अच्छा फैसला अगर करार दिया जा रहा है, बट पाकिस्तान वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो नजर आता है इंडिया की जानिब से, और अगर अफगानिस्तान भी टेररिज्म के हवाले से, अगर अफगानिस्तान भी वही टोन पाकिस्तान के लिए अपनाता है, पाकिस्तान के खिलाफ, और वो तमाम चीज बहुत उस तरह के माहौल में नहीं होती, तो पाकिस्तान उस चीज को काउंटर किस तरह से करेगा, उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को? और बायलैटरल फिर जो मुज़ाकरात अगर हुई साइडलाइंस पे, तो उसमें पाकिस्तान के लिए फिर तरजीहात और पाकिस्तान का फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से है और हमारी तरफ से भी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जब से कश्मीर में हालात बिगड़े हैं तो यकीनन हमारी नाराजगी बढ़ी है, लेकिन नाराजगी से ज्यादा ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने हमले तेज कर दिए हैं हिंदुस्तान के अंदर, और लिहाजा वो हम पर जब उंगली उठाते हैं उसमें कुछ सदाकत है, और हमारी बात भी बिल्कुल सच्ची और सही है कि हिंदुस्तान कश्मीर में अब बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा है पहले के मुकाबले में। तो
प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से हो रहा है और इसी वजह से जरूरत है मुज़ाकरात की. Sir, Ayaz Wazir Saab, you think Sartaj Aziz Saab, who will be leading the delegation, you think वो कश्मीर में जो इंडियन atrocities हैं उसको हाईलाइट करेंगे, उसको रेस करेंगे? देखिए जाहिर बात है यहाँ पे ऐसी जगह पे तो कोशिश ये होती है कि किसी मुल्क का नाम न लिया जाए, डायरेक्ट नहीं कहते हैं, इनडायरेक्ट ज़रूर कहते हैं, वही मकसद होता है, लेकिन बजाय डायरेक्ट होने के. तो अगर वो बात करते हैं कि टेररिज्म को जड़ से फेंका जाए, इस रीजन से उखाड़ा जाए, टेररिज्म पे फोकस करें, हिंदुस्तान भी इसी तरह कहेगा कि पड़ोस में टेररिज्म में पाकिस्तान का नाम देखना नहीं आएगा. तो इसी तरह हम भी कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल टेररिज्म मुल्कों के अंदर भी मुल्कों के खिलाफ हो रही है. वही चीज़ है, लेकिन अल्फाज बदले होंगे. तो सरताज ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे जब मौका मिले, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने इसी तरह बिल्कुल लाइन लाइट में नहीं लाया तो फिर खामखा के झगड़े की उधर उस फोरम पे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान फोकस्ड है. अफ़गानिस्तान पे अगर किसी बात का मनफी असर पड़ता है तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए. कश्मीर का मसला हमारा हिंदुस्तान का है, उसमें अफगानिस्तान का या जो दूसरे मुल्क इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, 14-15 मुल्क के और कुछ रीजनल वो हैं फोर्सेस है, तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट तो ये नहीं है, तो हमारा बायलैटरल है. तो उस तरह तो बात की जा सकती है. लेकिन मैं ये आपके आइसोलेशन के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है या कर रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, वो तो कोशिश करेगा. लेकिन आप पिछले या इस शुमारे में एशिया टाइम में इंडिया का फार्मर डिप्लोमेट बद्र कुमार लिखता रहता है, उसने गजब का आर्टिकल लिखा है इस मरतबा. उसने कहा ये जो हिंदुस्तान कहते हैं कि हम आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट तो वो खुद हो रहा है तकरीबन, क्योंकि गवादर में पाकिस्तान के साथ अब रूस भी आना चाहता है, ईरान भी आना चाहता है. तो गोया पाकिस्तान, चाइना, रूस, ईरान ये एक तरफ हो गए और अमेरिका और हिंदुस्तान अलग रह गए. तो आइसोलेशन में तो वो चले जा रहे हैं, हम इतने नहीं चले जा रहे. हाँ, हमारे अंदर मुल्क के अंदर जो कमजोरियां हैं जिनकी तरफ हमारे भाई हुद भाई साहब ने इशारा किया, वो हमारी कमजोरियां जरूर हैं, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए. उसके अलावा हमारी कोई कमजोरी नहीं. राइट, बट सर अगेन ये कॉन्फ्रेंसेस का इम्पैक्ट और उसका क्या नतीजा अखज होता है? एक 5th मीटिंग हुई थी क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की पाकिस्तान में, QCG, जिसके हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना है. क्या नतीजा निकलता है सर इन कॉन्फ्रेंसेस का? कॉन्फ्रेंसेस का उस तरह तो डायरेक्ट ऐसे कोई सोल्यूशन की तरफ हम देखा नहीं है हमने कि इस किस्म की मीटिंग जैसे हार्ट ऑफ एशिया हो गई या कोऑर्डिनेटर ग्रुप हो गया या भी पाकिस्तान, रशिया और चाइना के दरमियान अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत चलने वाली है. तो उससे लेकिन ये राह हमवार करती है, टेंशन्स को नीचे करती है और नए आइडियाज जो है आप इसमें फ्लोट कर सकते हैं. तो इस तरह बातचीत जो है ना किसी हालत में भी बंद नहीं करनी चाहिए. और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस का अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है. ये कोऑर्डिनेटर ग्रुप अगर आप देखें, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मेरे ख्याल में बहुत कोशिश की. अभी वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि जैसे अगर अमृतसर में वहाँ पर बातचीत की जाती है तो आप इसको देख लें कि जो ये किस तरह ये अफगानिस्तान के जो हालात हैं किस तरह ये पेचीदा होते जा रहे हैं कि जो रस्मी तौर पे अफगानिस्तान ने ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुदाखलत कर रहे हैं उसमें, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है कि जो मुदाखलत कर रहा है. अभी वो हिंदुस्तान का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उसकी कोई वजूह है जिसके ऊपर वो उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ मुदाखलत करता है, बाकी ममालिक भी करते हैं, कोई ऐसे साफ नहीं है. जॉन निकलसन की कल की स्टेटमेंट है, जो अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस का अफगानिस्तान में जो कमांडर हैं, उन्होंने ईरान और रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं तालिबान को. लेजिटिमाइज किया कि आप उनके साथ वो रास्ते खोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उनको. तो ये पाकिस्तान का जो ये अभी उसमें ये कायल करने की कोशिश करें सारे ममालिक को. 14 ममालिक हैं इसके अंदर, मेरे ख्याल में कोई 40 कोई डेलीगेशंस और भी हैं इसमें जो आ रहे हैं इसमें. तो इसमें पाकिस्तान को जो है ये बातचीत ये करनी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आप बाकियों को भी देखें, वो भी इसमें जब तक इसका एक रीजनल
सोल्यूशन ना निकाला जाए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान लीड कंट्री होगा कि पाकिस्तान का असर रसूख ज्यादा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बाकियों से ज्यादा है, लेकिन बाकी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, वो भी इन्वॉल्व है। कुछ अफगानिस्तान के अंदर दाखिली मसाइल हैं जिनको वहां पर उसकी सोल्यूशन बहुत जरूरी है। वहां पर 2 हुकूमतें इस वक्त अफगानिस्तान में चल रही हैं और उनमें से कुछ बेनिफिशरीज हैं स्टेटस को के कि जो ये नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान को एक और पॉइंट रेज करना चाहिए, वो है स्पॉयलर्स जो इस इलाके में अमन नहीं लाना चाहते हैं। उसमें पाकिस्तान में भी हैं कुछ स्पॉयलर्स, उसमें अफगानिस्तान में भी हैं, उसमें एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज भी हैं कि जो नहीं चाहते कि यहाँ पर वो आए। क्योंकि मैं जाता हूँ वो जो मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी है कि अगर आप हार्टलैंड के ऊपर, और ये सेंट्रल एशिया यूरेशियन हार्टलैंड जो है, कि इसमें अगर आप अपना असर रसूख रखें तो आप बाकी को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो ये नेटो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बाकी ममालिक जो चाइना बीच में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, या बाकी अभी उनकी चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल। रशिया का अब तालिबान के साथ लिंक्स जो है वो अभी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इसमें से निकलने के लिए मेरे ख्याल में बहुत काम करना पड़ेगा। ये फिलहाल इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। राइट सर। परवेज साहब, क्या भारत की तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान पे कि अफगानिस्तान और भारत की जो तिजारती ट्रकों को बगैर किसी रोक टोक के पाकिस्तान से जो है गुजरने की इजाजत दी जाए? अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि मैं इन दोनों हजरात से इत्तफाक करता हूँ कि ये बड़ा पेचीदा मसला है और इसमें तरह तरह के इंटरेस्ट हैं, लेकिन हमें इसको अपने नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें। और जो आपने अफगानिस्तान और इंडिया की तिजारत की बात की थी, जी 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 बिल्कुल, तो ये कोई दिफाई माहिदा नहीं है, ये तो तिजारत की बात हो रही है। और इस तिजारत के होने से हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी इसके अंदर शामिल हो जाएं और कि जितने भी ममालिक हैं साउथ एशिया में, वो एक दूसरे के साथ अपने बॉर्डर खोलें और वो तिजारत करें। देखें, हम तिजारत करते हैं यूरोप के साथ, चीन के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ और खास तौर पर इंडिया के साथ हमारी तिजारत बहुत कम है, जबकि इन्हीं मुल्कों के साथ हमारा होना चाहिए ताकि हमारी मईशत आगे बढ़े और तरक्की पा सके। हमें जितना नुकसान होता है बॉर्डर्स बंद करने से, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है, हम सिर्फ औरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में मुआविन हो सकते हैं, अगर हम अफगानिस्तान को पुरअमन बना सकते हैं, तो वो काम हमें करना चाहिए। और अगर वहां तिजारत होती है इंडिया और अफगानिस्तान की, तो हमें क्यों इस पर एतराज होना चाहिए? Absolutely. With this, I'll go for a break right now. ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अयाज वजीर साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले परवेज साहब भी कह रहे थे कि हमें औरों को नुकसान पहुँचाने वाली उस पॉलिसी से ज़रा वो करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है इंडिया के साथ ट्रेड की भी, तो वो ट्रेड वॉल्यूम भी हमारा बड़ा लो है। क्यों नहीं सर हम अपने पॉलिसीज में उस तरह से चेंजेस ला रहे हैं, और क्यों नहीं वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, मतलब अगर आगे बढ़ना है तो फिर उस तरह से पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट करें? देखिए, इसमें हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वरना हमारा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था अभी भी है, एग्रीमेंट हमने साइन किया है उनके साथ। उसके अंदर अफगानियों का मेन एम्फेसिस यही है कि हमें पाकिस्तान के थ्रू इंडिया तक जाने दे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पेरिशेबल आइटम है, फ्रूट है, तो वो ख़राब हो जाते हैं अगर जल्दी ना पहुंचाए। और वहाँ से भी जो चीज़ें हम उठाना चाहे वो हमें जाने दे। तो कुछ हो जाता है फिर रुक जाता है, भी तो खैर उनको भी इतनी खुली इजाज़त नहीं है, वागा तक ले जाते हैं, फिर उधर से चेंज होता है। मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल ये बात मानता हूँ और इसका कायल हूँ कि हमारी तिजारत खुली होनी चाहिए हर एक के साथ, खा इंडिया हो खा अफगानिस्तान हो, तिजारत खुली होनी चाहिए। दुश्मनी आप कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? या फिर दूसरा मिसाल यूरोप का देख लें,
दूसरी जंग अजीम में उन्होंने आपस में क्या नहीं किया, कितनी तबाहियां एक दूसरे की नहीं की। अब उसका कितना अरसा हुआ, तकरीबन इतना ही अरसा हुआ जितना हमारा अलग हुए हुआ है। तो वो कितने करीब आ गए, तिजारत कितनी तेजी से हो रही है, दरमियान में लंबे लंबे टनल समंदर को काट के बना लिए कि तिजारत होती रहे, इंटरेक्शन होती रहे। हम यहाँ पे उसी बात पे हम भी अड़े हुए, हिंदुस्तान भी अड़ा हुआ है कि नहीं जी यह रास्ता मेरे सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इधर से फिर फलाने को फायदा होगा, इधर से फलाने को होगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है। हिंदुस्तान को अगर हमें मार्केट मिलती है, हमारी मार्केट छोटी है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान को भी सेंट्रल एशिया की मार्केट मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। वहां अफगानिस्तान रोड़े नहीं अटकाएगा, तो अब तो वहां अफगानिस्तान हमें नहीं जाने देता, और इधर हम अफगानिस्तान को इंडिया नहीं जाने देते, और इंडिया को इधर आने नहीं देते। तो हम तीनों ने आपस में गरेबान में एक दूसरे को पकड़ा है। मेरा ख्याल है इससे हाथ हटाने चाहिए, तिजारत ग्रेजुअली बढ़ाने चाहिए। सर कौन पहल करेगा, किस तरह से हाथ उठाया जो भी जाएगा? पहल करे, लेकिन ये इसलिए कर ले कि इसके बगैर चारा नहीं है। जैसे जंग होती है, पसे पर्दा डायलॉग भी होता है, इसी तरह अगर टेंशन है तो तिजारत की भी ज़रूरत होती है, वो भी करनी चाहिए। वो बाकी इंटरेस्ट अपनी जगह, तिजारत अपनी जगह, ताल्लुकात कोशिश ये होनी चाहिए कि ताल्लुकात बढ़े, कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि ताल्लुकात में रोड ज़्यादा अटकाए जाए। ये तो रोड अटकाने वाले, रोड ब्लॉक से आप बढ़ाते जाते हैं, फिर कैसे मसला हल होगा? अगर ये चीज़ें न हो, ये टेंशन ना हो, ये फ्री वीज़ा में भी फ्री अरेंजमेंट हो कि हम एक दूसरे के पास आसानी से आ जा सकें, पुलिस थाने को रिपोर्ट न करे, ना हम वहाँ करें, ना हिंदुस्तानी यहाँ करे। कई चीज़ें बेहतर हो सकती है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ वीज़ा लेना खासा उनको मुश्किल है और हमें भी मुश्किल है, एक दूसरे को तंग कर। ये चीज़ें हैं जो पॉलिसी पे असरअंदाज होती है। और एक ज़माना था कि हमारा पड़ोसियों के साथ सिवाय हिंदुस्तान के बहुत बेहतर ताल्लुकात थे। अब बदकिस्मती से सिवाय चाइना के सबके साथ ताल्लुकात टेढ़े हो गए। तो तो सर इस तरफ जरा थोड़ी सी आइसोलेशन का फिर हम शिकार हो रहे हैं? नहीं, आइसोलेशन उस लिहाज से मैं नहीं मानता। हमारे ताल्लुकात बायलेटरली कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उन मुल्कों की भी आपस में हमारे खिलाफ जोड़ नहीं है जो हम डरते हैं कि वो हमें आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये ज्यादा करीब आ गए, लेकिन वहाँ पे हमारी अपनी गलत हिकमत अमली है। अगर हम अफगानिस्तान की पॉलिसी को रिविजिट कर ले तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम विद इन नो टाइम हिंदुस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर असरअंदाज भी हो सकते हैं, ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ पाने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उस तरफ कोई ध्यान नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब, अफगान पॉलिसी को रिविजिट करना, और सर स्टार्टिंग फ्रॉम पठानकोट इंसिडेंट, उरी अटैक, एलओसी पर सीज फायर वायलेशंस, कश्मीर में इंडियन एट्रोसिटीज, जो तमाम चीज़ें हाईलाइट उनकी तरफ से की जाएंगी, विल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्राई टू यूज दिस कॉन्फ्रेंस फॉर हिज पॉलिटिकल मोटिव्स, या इंतखाबी जो इलेक्शंस भी होने वाले हैं पंजाब में? बिल्कुल जी, हिंदुस्तान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरीके से, अगर डायरेक्ट नाम नहीं लेता है तो वो इस तरह बाय इम्प्लीकेशंस वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो इसके ऊपर अभी हमने काम करना है कि किस तरह हो। और दूसरा ये है कि जो इंडिजिनस उसकी अपराइजिंग है, इसको 2 दफ़ा हमने मिस हैंडल किया है। मतलब है कि जो 1989 में हुआ उसको अगर हम इंतिफादा रहने देते और उसके अंदर ये जिहादी इंट्रोड्यूस ना करते, और वो भी जिहादी जो इस कश्मीर के नहीं थे, बाहर से हमने इंट्रोड्यूस किए और उसको हाईजैक कर दिए, वो जो इंटरनल मूवमेंट थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसको ले गया एज अ टेररिज्म। उसके उसमें 2001 में जब टेररिज्म के ऊपर दुनिया का फोकस आ गया तो हम बिल्कुल उसके ऊपर हमारा वो जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अभी भी जब ये इंतिफादा था, मेरा यही था कि इस इंतिफादे को चलने दें। इस इंतिफादे को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, किसी ने डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं, आप कोई कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल उनको कोई हेल्प दे सकते हैं, लेकिन बीच में
टेररिज्म नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको हिंदुस्तान दोबारा इसके ऊपर ले आएगा, वो फोकस हटा देगा, वो जो इंटरनल वहाँ पर एक वो है। हमें इस पे करना चाहिए कि जो कश्मीर की मौजूदा जनरेशन है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहती और आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और दुनिया आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगी। और आपने देखा कुछ ना कुछ मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि जी ये, लेकिन जब से उड़ी का अटैक हुआ बाकी उसके बाद वो दूसरा वो कहीं एक और हुआ जिसमें 3-4 कैजुअलिटीज हो गई और हिंदुस्तान वो जो कहता है कि जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में भी जो कुछ कर रहा हूं वो क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई। अब इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई या नहीं हुई हमें तो नहीं पता है, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया के सामने ये लेके जा रहा है। दूसरा जो हमें वो है, ये चीजें जो होती है ना वक्ती तौर पे होती हैं। 1967 या 68 में, मुझे अभी सही याद नहीं है, ब्रेज़नेव ने एक एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्लान बनाया था। वो यही था कि जो अभी वन बेल्ट वन रोड वाला है कि ये जितने भी ममालिक हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान का नेबर था और उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सारे मुल्क जो है ना ये रोड्स बनाए, बंदरगाहें खोले अपनी। हमने उसको कहा नहीं नहीं हमारी सिक्योरिटी जो है ना वो एंडेंजर होती है, इसमें इंडियन ट्रक आएंगे, फलाना हो जाएगा हमारा। उसी चाइना को हमने वही परमिशन दे दी कि आप गवादर को इस्तेमाल करें, वही वार्म वाटर पोर्ट्स का जो बात। उसी सोवियत यूनियन को जो अभी रशिया हो गया है उसको हमने इजाजत दे दी। अभी जो उसकी सबसे पहले एक बुनियादी हिंदुस्तान क्या नाम है अफगानिस्तान की डिमांड है कि आप हमारे ट्रक को वागा पे अनलोड करते हैं, वहां से मजदूर उठाता है, अटारी तक मजदूर लेके जाता है उसको, तो बराए मेहरबानी हमारे ट्रक को अटारी तक जाने दे ताकि बैक टू बैक लोडिंग हो। तो उससे कम से कम 10-15% जो है ना वो कॉस्ट में जो हिंदुस्तान में फल बिकेगा उसमें कमी आ जाएगी, तो हमारा और ज्यादा हो जाएगा। इसमें मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्यों उसको किया। हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड में क्यों मुश्किलात वो कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उस दिन आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जी 70% ट्रेड जो है ना वो शिफ्ट हो रही है उसमें बंदर अब्बास पे। इतना लंबा रास्ता वो ले रहे हैं, वो क्यों ले रहा है? यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं या पता नहीं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन हम जितने मसाइल खड़े कर रहे हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, ये समझ से बाल आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। राइट। तो जब तक हम अपने सिक्योरिटी पैराडाइम को रिविजिट ना करें और कोशिश करें अपने प्रिंसिपल स्टैंड अप रखें, लेकिन चेंज ओवर फ्रॉम अ वॉरियर स्टेट टू अ ट्रेडिंग नेशन। सर परवेज साहब, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो ऑब्स्टिकल्स, आखिर जो ब्रिगेडियर साहब ने एक वैलिड पॉइंट उठाया कि क्यों आखिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक, इसको मजीद सिचुएशन को एग्रवेट करने की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? जी, ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ा अहम मसला उठाया और उससे पहले अयाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि यूरोप में एक ज़माने में हर तरफ जंगें होती थीं, लेकिन अब वहाँ पर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, तिजारत खुली है। लेकिन अगर ताल्लुकात अच्छे ना भी हों तो भी तिजारत हो सकती है। और इसकी दलील ये है कि अगर आप चीन और हिंदुस्तान की तिजारत देखें तो वो मेरा ख्याल है कोई अब 90 अरब डॉलर सालाना से तजावुज कर गई है। हालांकि चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और दोनों मुल्कों ने खासी अफवाज जमा की हुई हैं अपनी सरहदों के ऊपर और एटम बम तैयार किए और एक दूसरे को किसी तौर पे दोस्त नहीं समझते। ताल्लुकात ज़रूर हैं लेकिन वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी उन्होंने तिजारत में कमी नहीं आने दी है। अगर आप अमेरिका और चीन की मिसाल देखें तो उनके दरमियान भी टेंशन है, चपलिश है, लेकिन जो चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है। तो अब अगर ये दो मुमालिक अपने हरीफ मुल्कों के साथ तिजारत कर सकते हैं तो क्या हम हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकते? उसमें आखिर मज़ायका क्या? ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हम खामखा रोड़े अटका रहे हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड में। अब वो बेचारे जो अफगानिस्तान में फल उगाते हैं, अगर उनका फल ज़्यादा आसानी से बिक सकता है तो हमें इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए? हम क्यों इस बात पे इसरार करते हैं कि ट्रक यहाँ पर अनलोड होंगे और फिर दोबारा अनलोड होंगे? उन्हें सीधे जाने दीजिए, सिक्योरिटी चेक कर लीजिए, वो करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो हमें, और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि हमें वॉरियर स्टेट से हट के अब एक ट्रेडिंग नेशन, एक ट्रेडिंग स्टेट की जानिब बढ़ने की जरूरत है।
ایبسلیوٹلی ٹریڈنگ اسٹیٹ بڑھنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے کافی حد تک, لیکن اس طرح سے کیا وہ ایک ڈائریکشن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ڈسکشن کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایاز وزیر صاحب, کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی میں کچھ تبدیلی لائیں گے؟ امکانات کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیے, بڑے ملکوں کا یہ ایک اچھی خوبی ہے بڑے ملکوں کی, خاص کر امریکہ کی, کہ ان کے ٹاپ لیول چینج کے ساتھ ایک دم یکسر چینجز نہیں آتے. پالیسیز وہی ہوتی ہیں, اسی طرح چلتی ہے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. سڑک وہی رہتی ہے, سڑک وہی فار ایگزامپل لاہور اور پشاور والی ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں, کیا رولز ریگولیشن ہوں گے, اس میں چینج کریں گے. ٹرمپ صاحب نے بڑی باتیں کی ہے. اگر الیکشن کمپین والے پالیسی پہ جائیں تو پھر تو دنیا ہی الٹ جائے گی, لیکن جب وہ آ جائے, بریفنگ لے لے, ٹیک اوور کر لے, پھر دیکھ لے کہ ادارے ان کو کیا کہتے ہیں, جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے گا اس کمپین والی مرضی سے ادارہ کڑا ہو جائے گا کہ نہیں جی یہ طریقہ غلط ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے. تو افغانستان کے اندر امریکہ کی ایک پالیسی چلی آ رہی ہے, اس میں زیادہ چینج نہیں دیکھ رہا. ہاں, ایک چینج کا مجھے شک ہے کہ شاید وہ ہو, اور وہ جو پاکستان سے اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹو ڈو مور, اس میں شاید زیادہ زور آ جائے. ڈو مور مطالبے ڈو مور جو پہلے کرتے تھے وہ کہہ لیتے تھے لیکن سختی سے امپلیمنٹ نہیں کراتے تھے. مثال میں ڈرون کا دوں گا, ڈرون اٹیک کراتے تھے فاٹا میں, باقی پاکستان میں نہیں آتے تھے, سوائے طالبان کا جو لیڈر اب بلوچستان میں مارا, یا ایک آدھ شاید کے پی میں بھی ایک ہنگو کے قریب کا انسیڈنٹ ہوا. اس کے علاوہ باقی پاکستان میں نہیں. ٹرمپ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہے گا کہ بھئی یہ جو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹھیک کر لے, نہیں تو اسلام آباد بھی مار سکتے ہیں, ہم لاہور بھی مار سکتے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پیشتر کہ وہ ہمیں یہ کہے, ہم خود کیوں اس قابل نہیں ہے کہ اس چیز کو, جیسے خود بھائی صاحب نے پہلے بھی اشارہ کیا, اس چیز کو, اس مرض کو ہم کیوں ایڈریس نہیں کرتے, ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. دوسرا کوئی جبرن آپ کو کہے کہ یہ کھانا کھائیں تو اچھی بلی پکی حلوہ بھی ہو پھر دل نہیں کرتا, اپنے بھوک سے آپ کو سوکھی روٹی بھی مزہ دیتی ہے, تو ہم اپنے مرضی سے کیوں نہیں کرتے اپنے ملک کے اندر. یہ تو مصیبت ہے, ملک کی طاقت کو ایروڈ کر رہی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا پاور ہے, یہ پاور انفارچونیٹلی نہیں ہے, یہ ہمیں اندر سے کھا رہی ہے. ہم دوسرے کے لیے یہ پال رہے ہیں, پھر یہ ہمارے گلے پڑے گا. جیسے ٹی ٹی پی پہلے کہاں تھے, ادھر ہی تھے ہمارے پاس, اب کدھر ہے اور کن کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ جب اس راستے پہ چل پڑتے ہیں پھر اس میں پیسہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, قتل کرنے پہ پیسہ ملتا ہے, پھر ایک مرتبہ قتل کر لو پھر یہ فرق مٹ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر. بریگیڈیئر صاحب, گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ میں فرق نہ کریں. امریکہ جو بار بار ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتا ہے, پاکستان میں جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں اس کو ختم کیے جائیں, اور ایاز وزیر صاحب نے بھی کہا کہ جو ڈو مور کا مطالبہ ہے اس میں مزید جو ہے وہ سختی اب آئندہ دیکھی جا سکتی ہے. ایون تو کہ ایاز وزیر صاحب گزشتہ روز ایک پی ایم ایل این کے سینیٹر میرے ساتھ شو میں تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب بڑا پازیٹیو ہے, جو the recent conversation with نواز شریف صاحب جو ٹرمپ صاحب کی ہے اس کو بھی اتنے بلیویبل قرار دیتے ہوئے, اور کہ اتنے اچھے خوشگوار اور خوشنما زبان میں انہوں نے وہ conversation کی ہے. تو he is to be taken seriously. ٹرمپ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ should be taken seriously when he says کہ حل طلب جو تنازعات اور جو معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس میں بھی وہ ایک کردار ادا کریں گے. یہ اس کو جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کیبنٹ سامنے آ رہی ہے, اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جیت ہوئی ہے, کیونکہ جنرل فرینچ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر چل رہے ہیں, نام ابھی آ رہا ہے پیٹریس کا ایز دی سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور جنرل میٹس جو ہے جیمز میٹس وہ آ رہے ہیں ایز دی ڈیفینس سیکرٹری. تو یہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا آئے گا, اور اس کا مطلب ہے کہ جو ملٹری پالیسیز افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری کہتی ہے کہ ہم یہاں سے نکلنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہم نے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے,
کیونکہ ایسے نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور ہمیں دوبارہ 2001 پہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے وہ سنیکس اینڈ لیڈرز والا. تو ہمیں یہ بھی تیار ہونا چاہیے اگر یہ اپوائنٹمنٹس اس طرح آتی ہیں اور یہ اپروو ہو جاتی ہیں سینٹ سے, جو یہ 3 اپوائنٹمنٹس ہیں اور انہی کو چلا جاتا ہے, تو میرے خیال میں افغانستان میں امریکن پریزنس اور امریکن جو انوالومنٹ ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے. اور اس میں اگر وہاں پر ان کو کامیابی زیادہ نہیں ہوئی تو پاکستان کے اوپر بے انتہا پریشر آئے گا. تو ہمیں جیسے بالکل وزیر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں پہلے سے کام کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی بازو دبائے تو ہم وہ کام کر دیتے ہیں, بازو نہ دبائے تو پھر ہم اپنے جو اچھے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس اچھے ڈیسیشنز لینے کی ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے, یا سوچ ہم نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا. اب آپ اس کو دیکھ لیں نا, ایران کا دیکھ لیں کہ کس طرح اس نے افغانستان کو ٹریٹ کیا, کس طرح ہم نے کیا. آپ نے جو ہے بے تحاشا لوگوں کو ٹرین کیا, بام بنانے میں کیا. 1979 کے بعد جب سوویٹ انویژن آف افغانستان آیا, آپ نے بے تحاشا ویپنز آپ نے دیے اور یہ ٹرین کیے سارے لوگ. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بعد میں ان کو کس طرح ری انٹیگریٹ کریں گے. کیا کسی نے ڈی ڈی آر بنایا تھا کہ آپ نے ان کو ڈی موبلائز کرنا ہے, آپ نے ان کو ڈی ویپنائز کرنا ہے, آپ نے ان کو ری انٹیگریٹ سوسائٹی میں کرنا ہے. اس کو تو سوائے لڑائی کی اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, سوائے بام بنانے کو اس کے پاس اور کوئی ذریعہ روزگار ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا کسی نے سوچا تھا؟ آپ بلائنڈلی چلے جاتے ہیں اس میں. آپ ایران کو دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح کیا. اس کے ملک میں دہشت گردی ہے, وہ بھی اس نے افغانستان میں وہی کردار ادا کیا ہے کہ افغانستان میں اس کے دوست ہیں وہاں پر. ہمارے دوست ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کا جو ملبہ تھا وہ سارا پاکستان کے اوپر آ گیا. تو ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے اور اس کی جو باقی کابینہ ہے, اور آپ نے جنرل پیٹریس کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ دی حقانی از دی ویریٹیبل آرم آف دی ISI. تو اس قسم کی سوچ کے ساتھ وہ آ رہا ہے. تو ہمیں پہلے سے ایسے گراؤنڈ پریپیئر کرنے چاہیے, ایسے کارروائیاں کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے سامنے یہ نہ لگے کہ ہمارا بازو دبایا تو ہم نے کام کر دیا. پرویز صاحب, وہ اگین وہی والی بات کہ کیا جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ہمیں کیپیسٹی نہیں ہے, اب ہماری وہ ول نہیں نظر آ رہی, کیا معاملہ ہے. اور ڈاکٹر شہدا عبدالی جو کہ افغان ایمبیسڈر ہیں ان انڈیا, ہی آلسو سیز کہ ٹیرر کریٹڈ ان ریجن سولوشن آلسو لائز ہے. تو پاکستان کی جانب سے وہ اقدامات لیے جائیں گے کہ نہیں, بجائے اس کے کہ ہمارا کوئی بازو دبائے اور ہم سے ڈو مور کا مطالبہ میں کچھ اور مزید پریشر بڑھائے جائیں؟ یہ تو اہل اقتدار سے پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والے ہیں کہ نہیں. لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر جب یہ اڑی پر حملہ ہوا تھا تو ادھر جو ہلاک ہوئے تھے یا جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے نماز جنازہ حافظ سعید صاحب نے پڑھائی تھی گجرانوالہ میں. اب ہم نے تو ادھر ٹی وی پر کبھی یہ بات سامنے آنے نہیں دی, لیکن دنیا یہ جانتی ہے اور یہ ساری دنیا کے اخبارات میں بات پھیل گئی تھی. لہٰذا اب ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جہادی گروپ پاکستان میں اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں اور کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے. لہٰذا اگر ہم ان پر قابو نہیں پاتے تو دنیا ہم پر انگلی اٹھاتی رہے گی. ایک اور نقطہ جو ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ اسی ڈگر پر چلے گا جس پر اوباما چلتا رہا ہے اور کہ اس نئے صدر کی آنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. میرا خیال ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے حالات اور خصوصاً پاکستان کے حالات, پاکستان انڈیا کے حالات کے بارے میں لا علم ہے. جب اس سے کوئی عام سا بھی سوال کیا جاتا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا, اس کو تو ملکوں کے نام تک یاد نہیں تھے. لیکن خیر اس کی اپنی کابینہ ہوگی, اس کے ایڈوائزرز ہوں گے اور اب وہ ان کو رکھ رہا ہے. اور یہ بڑے ہاکش لوگ ہیں جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, مگر اب تک میرا خیال ہے کہ یہ طے نہیں ہوا کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. مثال کے طور پر نارتھ کوریا کے معاملے میں اس نے کہا کہ میں جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا. پھر اس نے جاپان سے کہا کہ اب جاپان کا ہم تحفظ نہیں کریں گے, جاپان کو چاہیے کہ خود اپنے ایٹم بم بنائے, جبکہ یہ امریکہ کی پچھلی پالیسی سے بالکل مختلف تھی. لہٰذا جب تک وہ صدر نہیں بنتا اور اس کی ٹیم نے ٹیک اوور نہیں کیا تو ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ
अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से वही रहेगी जो ओबामा के ज़माने से रही है या कि बदल जाएगी? राइट सर, परवेज साहब मैं लास्ट एक कमेंट और जो कि वो बैंड आउटफिट्स का जिक्र भी हुआ, पठानकोट इंसिडेंट के बाद भी हम देख रहे थे कि एफआईआर यहीं पर गुजरावाला में काटी गई थी. Yesterday, Khurshid Shah Saab, who's the leader of the opposition in the National Assembly, he said कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो they've been enjoying ties with band outfits from day one. अपने regime के स्टार्ट बिल्कुल आगाज से ही बैंड आउटफिट्स को इनकी सरपरस्ती, इनकी सपोर्ट हासिल है, जिसके बाद हम इंटरनेशनली देखते हैं कि इतना पाकिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें की जा रही है और पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि जी ये इन बैंड आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे अपने अंदर ही, हमारे मुल्क में ही पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रही होती है. तो इसमें किस तरह से इसको देखते हैं सर, और फिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? देखिए, ये एक बड़ा मुतनाज़ा मसला है और यही वजह है कि सिविल और मिलिट्री हुकूमत में एक सिविल इंतज़ामिया और मिलिट्री में एक तनाव भी पाया गया है. और हमने देखा था कि जो डॉन का वाक़या था वो कितना बढ़ गया था. अब ये एक हकीकत है कि मुस्लिम लीग PMLN के ताल्लुकात रहे हैं ऐसे जिहादी ग्रुपों के साथ जो कालेदम हैं, और राना सनाउल्लाह का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है इस सिलसिले में. लेकिन दूसरी तरफ PMLN फौज की तरफ इशारा करती है. तो ये एक चीज़ है जो रियासत को तय करना होगा कि आखिर हम मुल्क के अंदर क्या अमन व अमान चाहते हैं कि नहीं, और वो अमन व अमान तभी कायम करना मुमकिन होगा अगर हमने इन ग्रुपों के ऊपर सख्ती से हाथ रखा. क्योंकि न सिर्फ ये कि हम आलमी तौर पर बदनाम हो रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर भी इंतशार का सामना करना पड़ रहा है हमें. एब्सोल्युटली. और ये रियासत को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे जो एक्शंस हैं क्या वो वाकई में अमन और पीस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं. थैंक यू सो मच परवेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. अयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह.